Hello students, today we are going to see exercise 6.3 question number 5 of class 9. Okay, so the question is in figure 6.43 if PQ is perpendicular to PS, okay, and PQ is parallel to SR and angle SQR is 28 degree and angle QRT is 65 degree, then find the value of X and Y. Okay, so in this question, first of all just try to understand the question. Okay, so according to the question it is saying PQ is perpendicular to PS. Okay, this is the sign of perpendicular. Perpendicular matlab 90 degree. Okay, so PQ is perpendicular to PS. You see, PQ is perpendicular to PS मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. ठीक है, then PQ is parallel to SR. This is the sign of parallel. So PQ is parallel to SR. PQ is parallel to SR means this line and this line is parallel to each other. Okay. Now next is angle SQR is 28 degree. Angle SQR is 28 degree and angle QRT is 65 degree. Angle QRT, this angle is 65 degree. Then we have to find out the value of X and Y. X and Y. हम लोगों को ये एंगल फाइंड आउट करना है, ये एंगल एंड ये वाला एंगल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले क्या करेंगे, यहां आइए, ये ट्रायंगल को देखिए SQR. ये जो ट्रायंगल है इसे ध्यान से देख लेंगे. ओके, इधर बाकी क्या है उसको भूल जाइए अभी के लिए. नाउ जो ट्रायंगल है SQR, उसमें से हम ये जो साइड है SR इसे एक्सटेंड कर दिए हैं, एक्सटेंड कर दिए हैं T तक. तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल एंगल बनता है. ओके, एंड वी हैव स्टडीड द एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी. क्या होता है, ये जो एक्सटर्नल एंगल है दिस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. ऑपोजिट एंगल मीन्स इसका ठीक ऑपोजिट, ये एंगल छोड़ के ये दोनों एंगल को प्लस करेंगे, ये वाला एंगल को और ये 28 को प्लस करेंगे तो वो 65 होगा. ओके, नाउ विल बी यूजिंग द प्रॉपर्टीज हियर. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ इन ट्रायंगल SQR विल बी राइटिंग solution. Okay, in triangle, this is the sign of triangle SQR. Okay, and we will be adding these two angles. So we'll write angle SQR, angle SQR plus angle QSR. QSR is equal to angle QRT. Try to understand here. Okay, angle SQR ये वाला एंगल प्लस एंगल QSR दिस एंगल. ओके, ये दोनों को एंगल को प्लस करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू एंगल QRT. ये दोनों एंगल को प्लस करेंगे तो वो इसके बराबर होता है, एक्सटर्नल एंगल. सो विल बी राइटिंग हियर, राइट इट इन ब्रैकेट, एक्सटर्नल एंगल is equal to the sum of
the sum of two interior opposite angle. Two interior opposite angle. This should be in bracket. This has to be mentioned. हम लोग यहाँ पे ये दोनों को बराबर दिखा रहे हैं, ये दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो ये इसके बराबर होता है. क्यों होता है? So this is the reason. External angle is equal to the sum of two interior opposite angle. मतलब ये जो external angle है ये interior opposite angle ये दोनों को जोड़ने से उसके बराबर होता है. Okay? Now let's write this once again. Angle SQR plus angle QSR is equal to angle QRT. Okay, the same thing I have written it once again. Now angle SQR is 28 degree, so write here 28 degree plus angle QSR we do not know, so just write the name of the angle. QSR is equal to QRT. Angle QRT is 65 degree. This is 65 degree. Okay. So now we will be shifting this 28 degree to that side, and then we will be finding out the angle QSR. So angle QSR is equal to 65 minus 28 degree. Okay. Therefore angle QSR is equal to 15 minus 8 is 7. Here 5 minus 2 is 3. It will be 37 degree. Okay. So this angle is 37 degree. Okay. Now see once again. Here the question is telling PQ is parallel to SR. Means PQ और SR ये जो लाइन है ये दोनों लाइन पैरेलल है. ओके. सो ये जब पैरेलल है तो वी कैन से SQ इज द ट्रांसवर्सल. ठीक है ना. SQ इज द ट्रांसवर्सल है ये. तो जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होता है ये दोनों एंगल वो बराबर होते हैं. ओके. नाउ लेट्स सी जस्ट एन एग्जांपल. ओके. ये दोनों लाइन है. ये मान लीजिए दिस इज P एंड दिस इज Q एंड दिस इज S एंड दिस इज R. सपोज दैट. एंड यहाँ से एक लाइन हम इधर ड्रॉ करते हैं Q में. ओके. सो सिंस दीज टू लाइन्स आर पैरेलल ये दोनों इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा और ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होता है. ठीक है. लाइकवाइज हियर ऑल्सो ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होगा. तो दिस इज 37 डिग्री. सो ऑब्वियसली दिस एंगल ऑल्सो विल बी 37 डिग्री. सो नाउ we'll be doing that. From this side we'll be writing PQ is parallel to SR. PQ is parallel to SR and SQ is the transversal. Okay. तो PQ एंड SR पैरेलल लाइन है और SQ जो है SQ ये ट्रांसवर्सल है. एंड देयरफॉर एंगल PQS will be equal to angle QSR. Okay. Now see ये दोनों एंगल
ये दोनों एंगल को यहाँ लिखे हैं, जैसे एंगल पी क्यू एस ये वाला है इज इक्वल टू एंगल क्यू एस आर, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ओके, सो हियर वी कैन राइट देयरफॉर पी क्यू एस जो है ये x है, तो हियर वी कैन राइट x इज इक्वल टू क्यू एस आर इज 37 degree. So we found out the angle x here. Okay, so now we have found out angle x. Angle x is equal to 37 degree. Okay, now we'll be finding out this angle. अभी देखिए ध्यान से, ट्रायंगल क्यू पी एस। ओके, ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे देखिए, ये परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री है, और दिस वी हैव फाउंड आउट 37 डिग्री। जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड हियर वी कैन राइट 37 डिग्री। ठीक है, अभी जब ये 37 है और ये 90 है, तो ये दोनों को जोड़ के अगर हम 180 से माइनस कर दें तो ये एंगल y निकलेगा। दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। तीनों एंगल को जोड़ने से 180 डिग्री होना चाहिए। द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, कोई भी ट्राइंगल में तीनों एंगल को जोड़ते हैं तो तीनों एंगल को जोड़ने से वो 180 होता है। Now we'll be doing the same thing here. Okay, now in triangle, let's see SPQ, angle SPQ, this angle SPQ, this angle plus angle PQS, this angle plus angle QSP is equal to 180 डिग्री। ठीक है, तीनों एंगल को जोड़ेंगे, ये एंगल और ये एंगल, तो ये तीनों 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, नाउ एंगल SPQ, ये एंगल 90 डिग्री है, सो विल बी राइटिंग 90 डिग्री हियर, प्लस एंगल PQS 37 डिग्री वी हैव फाउंड आउट, 37 डिग्री, प्लस एंगल QSP, this angle it is y. So let us solve this now. Add these angles, this will be 127 degree plus y is equal to 180 degree. ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिए। नाउ ये 127 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, सो y is equal to 180 minus 127. Therefore y is equal to 10 minus 7 is 3, 7 minus 2 is 5. Okay, so it will be 53 degree. Now, so we have found out angle x is equal to 37 degree and angle y is equal to 53 degree. ठीक है, नाउ अभी बोलेंगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी जो है वो तीनों एंगल को जोड़ने से 180 होता है कि नहीं, वो चेक करते हैं। ओके, आंसर इज स्टिल हियर, दैट इज फॉर अस टू अंडरस्टैंड। आंसर यहाँ तक कंप्लीट है, लेकिन मैं उसको चेक करने के लिए दिखा रहा हूँ कैसे होता है। सो दिस साइड, ओके, ये एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल S, ये वाला इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है।
होता तो है पर सही में होता है कि नहीं वो चेक कर रहे हैं, और हमारा आंसर जो है वो सही है या नहीं। सो एंगल P इज 90 डिग्री, एंगल Q इज 37 डिग्री प्लस एंगल S, this one Y is 53 degree, is equal to 180 degree. Now add 0, 7 plus 3 is 10, 5, 6, 7, 8, 9 plus 9, 18, 180. You just see, वो तीनों एंगल को जोड़ेंगे अगर तो वो 180 के बराबर ही होता है. Okay, so this much, this one is not needed in the question, but till here it is okay, but this is for you to understand. So this is the way we found out the angle X and angle Y using the properties or the theorems. Okay, so in the next video we will see the next question. Till then, thank you very much. Have a nice day.